53. 53. Bhajan Sangeeta 53. There is none who does good. Psalm 53. To the choir master according to Mahalath, a maskil of David. Maskil means instruction, wisdom. Mahalath means ये पर्सन का नाम भी होगा, बट हियर द सेंस कम्स लाइक दिस. ये म्यूजिक गाने के एक रिदम है, एक स्टाइल है, शायद नीचे उसका फुटनोट है. पी देखना, पी. Psalms 88 टाइटल. सो ये महारत करके जो शब्द है वो एक म्यूजिक रिदम है, म्यूजिकल सेंस है, और म्यूजिक का इन्हीं रिलेटेड चीज है. एक गीत इसको कैसा गाना है, कौन से ट्यून में गाना है, उसको दर्शाता है महालत. Psalm 53 is a profound reflection of human depravity, divine judgment, and the hope of salvation that comes from God alone. So भजन संगीता 53 देश में आए हुए करप्शन सिचुएशन के बारे में हमको बताता है. Psalm 53 speaks about the corrupted people and the corrupted community, corrupted society that the author is facing, or that the author is living in a society where he can see everything is becoming corrupted. I think we have studied one psalm in the same context. भजन संगीता ऐसे हम पढ़ा है, दाऊद का ही है, ये भी दाऊद का है. So maybe the context, the main context is, as a nation they are going through a time of corruption. Corruption, what is mean by corruption? Then some scholars connect this story or connect this psalm with during the time of Absalom. ये तो फ्रीज करके रखा है. During the time of Absalom, शायद मे बी ये जो भजन संगीता अब्शलोम का समय में हुआ था, क्योंकि देश में करप्शन है करके देखना है तो राजा कौन होना है. मैं बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली इन माय थॉट, as a king only he can pray for his nation, right? As a king he is praying for his nation, and the issue is nation, everyone is getting a habit of corruption. मतलब corruption में डूब रहा है, पूरा देश में ही चल रहा है. So as a king David is placing a prayer in front of God. Now read this psalm. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, doing abominable iniquity. There is Yes, no. enough. Bhajan Sangeeta 14. We already studied in the same context. There was one psalm. The fool says in his heart. Bhajan Sangeeta 14 का भी same है. First bhajan. So the context is, those who are not obeying the word of God, those wicked people, they are saying there is no God. So we will do according to our own will. परमेश्वर है ही नहीं, हम खुद की मर्जी के अनुसार करेंगे. That's why Psalm 14 and Psalm 53 is connected. Both first verse and the beginning is same. And some scholars say that it was written, or the context is during the time of Absalom. Absalom के समय में दाऊद कौन था? शाऊल के समय में सर्वेंट किंग था. परमेश्वर राजा बनाया इनको, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ. So the authorship goes to King David, and the context again I am repeating, most probably during the time of Absalom. Division verses 1 to 3. The universal corruption of humanity. सारी जनताओं का करप्शन है. करप्शन मतलब सारी जनताओं के बीच में एक बीमारी के जैसा इस करप्शन फैल गया करके बताता है. करप्शन क्या था हिंदी में? भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार मतलब इन एवरीवेयर. आई थिंक द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन अभी मिल गया, अभी यही है ना. आधार कार्ड बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा? कौन? आंगनबाड़ी में. टू बी फ्रैंक, आधार कार्ड कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, फिर भी बोल रहा 50 रुपए में काम का समझ जाएगा. दुकान वाला कितना देगा?
जो लोग करवाए उनको पता है। वर्सेस 4 to 5, वो 2-3 बार किसी को पैसे देके आया है। वर्सेस 4 to 5, द फॉली एंड फियर ऑफ द विकेट, मूर्खता और डर किसका? अधर्मी व्यक्ति का, भ्रष्टाचारियों का। वर्सेस 4 to 5, वर्स 4 पढ़ के देखना, वहां कुछ खाने के बारे में लिखा है और दैट इज नॉट इन ए लिटरल वे। हर्ष, इसलिए आपको खड़ा करता हूं मैंने। मैंने आप कुछ नहीं बोला, और बैठने का तरीका, और बैठने का तरीका, आप खड़ा हुआ तो सीधा मेरा चेहरे पे देखेगा। वर्स 4 to 5, द फियर एंड फॉली ऑफ द विकेट। Verse 6, the hope of salvation for Israel. So for the nation, this is a prayer. So this is a prayer for the nation. And the context is, nation is sink into corruption. पूरा राज्य देश भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। इवन राजा को भी कुछ करना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खुद का बेटा ही क्या है। Who killed Absalom? Exegetical analysis और division explained, और जो ऊपर का division के बारे में थोड़ा explanation है। Verses 1 to 3, the folly and corruption of humanity, इंसान और उसका वो देश में जीने वाला लोगों के जीवन में, और वो लोग कैसा जी रहा है उसके बारे में लिखा है। एक बार जाकर पढ़ के देखना। पौलुस भी इस वचन को यूज किया, यूनिवर्सल सिनफुलनेस, मतलब पूरा समाज, पूरा दुनिया भर ये चीजें एक बीमारी के समान, ये चीज मतलब करप्शन एक बीमारी के समान फैल गया करके वहां दाऊद भी बताया, इधर पौलुस बताया। रोमियो का पत्र 3 का 10, 11, 12। सो यू कैन कनेक्ट वर्स 1 to 3 विथ रोमियो का पत्री 10 का 3, 11, 12 और 11 और 12, 10, 11, 12। Then you can connect this psalm with Psalm number 2. In which sense? Psalm number 2 में भी क्या बता रहा है? परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए देश देश राजा राजा प्लान को और खड़ा हो रहा है, और ऊपर से परमेश्वर देखकर ऐसा ही है ना भजन संगीता 2। So you can compare, you can connect this psalm with भजन संगीता 2, and भजन संगीता 2 दाऊद ने लिखा था in the same context। सबूत कहाँ से मिलता है हमको? Then 4 to 5, ये जो बुरे चीज करने वाला लोग कैसे डरेगा उसके बारे में लिखा है इन फ्यूचर सेंस। आई थिंक रीड वर्स 4। No knowledge to eat up my people as they eat bread, and do not fall upon God. So how their end will be and how they are going to be in the future, that is written in verse 4 and 5. कौन सा बात दिख रहा है? ये ऊपर आप लिखा है, ऑलरेडी लिख चुका है, उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कुछ नहीं। देन इन द लास्ट पॉइंट, द होप ऑफ साल्वेशन, मतलब पूरा देश इजराइल में शांति के लिए एक प्रार्थना, एक आशा। कौन रखा? दाऊद ने रखा। There I think you find one word regarding Jacob. Let Jacob rejoice, let Israel be glad। इधर सच में याकूब के बारे में बताया है क्या? याकूब का वंश, वहां याकूब का जो नाम की वहां आता है, याकूब से आए हुए वंश कौन है वो, उसके बाद आगे एक्सप्लेन किया, लेट इजराइल बी ग्लैड। यू कैन इवन रीड इन दिस वे, आई थिंक, लेट इजराइल रिजॉइस, लेट इजराइल बी ग्लैड। क्योंकि याकूब का दूसरा नाम क्या दिया था?
एंड याकूब का वंश से ही पूरे इस्राएल का झुंड खत्म आया है। थियोलॉजिकल थीम्स, sermon titles, the folly of denying God, परमेश्वर को छोड़ के जीने का मूर्खता कितना बड़ा है करके पहला वाला हेडिंग। Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The universality of sin, पाप कितना बड़ा है और कैसा फैल गया सर्वव्यापी, ऐसा आता है शायद, फैल गया करके बोला तो अच्छा होगा। ये पाप जो है करप्टेड फीलिंग और करप्टेड एक्शंस, दीज आर स्प्रेडिंग एवरी डे। दैट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ सिन। Divine justice and judgment, दैविक न्याय और जजमेंट का हिंदी क्या? जस्टिस। फोर्थ वन, द होप ऑफ साल्वेशन। This psalm uses literary devices like parallelism, repetition and metaphor. Three devices: parallelism, repetition and metaphor. And this psalm is connected with psalm number 14. And in a canonical and theological significance, this psalm number 53 points to the kingship of God. I think yesterday we covered two psalms in the same theme, under same theme, Parmeshwar, kingship of God. I think two psalms. मतलब कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितना धनी होगा, कितना बड़ा राजा होगा, परमेश्वर ही सबका अधिकारी है करके इस भजन संगीता हमको याद दिलाता है, जस्ट एज अदर psalms, kingship of God. Then this psalm gives one more thing, that is salvation. And it is fulfilled in a future sense. Messiah, जब यीशु मसीह आया था तब फुलफिलमेंट हुआ करके भी बताता है। So in a historical sense or in a historical interpretation, in Jewish interpretation, they even says this psalm has a messianic connotation or messianic explanation or connection. Why? Because इज़राइल का उद्धार करता, और इज़राइल का उद्धार कब आया, कौन आने से आया। So this psalm has a sense of prophetical nature, I think होगा, क्योंकि इज़राइल का उद्धार ऐसा कुछ लिखा है। वर्स 6 पढ़ के देखना। Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. किसी ने आने का बात है और किसी चीज आएगा, कहां से आएगा, एंड उद्धार करता, हम उद्धार करता के बारे में पढ़ के, द रिडीमर, द वन हु सेव्स अस, ही इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सो in somewhere in the interpretation it has a connection of messianic hope. मैसैया आएगा करके एक आशा हमको इस भजन संगीता देता है. But taking everything into the context of Absalom and David, there the context and the meaning is different. दाऊद क्या सोच के बताया होगा, एक दिन होगा मैं वापस मेरे राजा की पोजीशन में वापस आऊंगा, बैठूंगा, तब सब कुछ सीधा होगा. That also has the context. मतलब पूरा कहानी में जाकर देखा तो पढ़ के देखने के समय मैसैया आएगा करके एक इंटरप्रिटेशन हमको बता सकता है. समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया?
भजन संगीत लिखने वाला बंदा का शायद जो माने बातें मैंने बोला यीशु मसीह आने का बातें सोच नहीं होगा। उनका सोच में क्या होगा? उनका वो हालत को बदलकर एक नया दिन, अच्छा दिन। अभी समझ आया? फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ऑल्टर he might not be thinking as we are thinking today, messianic hope and all. For him the hope is a day will come where everything will be settled down, I will be back to the position and the nation will go in a peaceful manner. Now you understood? दो कॉन्टेक्स्ट आता है, एक तो पुराना और एक पढ़ने वाला हमारा। हमारे लिए तो क्या था? दूसरे आगमन का सेकंड कमिंग, क्योंकि अभी पूरा गड़बड़ हो रहा है, करप्टेड वर्ल्ड है, वो आएगा सब कुछ सुधरेगा करके, है ना, हम सोचता है, नहीं सोचता है? So that will be the application in a world where everything is being corrupted. We are living with a hope of salvation and we are preaching the word of salvation with a hope, with an expectation. The Messiah, the King will come and he will rule over everything, and that is the application that I can give. What will be your application? The corruption will be ceased by the second coming of Christ. मतलब ये बुरा समाज, बुरे समाज, करप्शन नहीं जाता, भ्रष्टाचार ऐसा वाला दुनिया को एक व्यक्ति और एक परमेश्वर आने से ठीक होगा। That is our hope. So what will be your application for this psalm? क्या होगा? What will be your application? संगे Application salvation come from the Lord.